Hey, hi everyone. I hope you all are doing good. I welcome to the third session of CA Intern, suggested answers to the MCQ and case scenario booklet issued by ICAI. In the day 3 discussion, we are going to discuss MCQ starting from question number 21 to 30 and case scenario starting from 11 to 15. Question number 11 to 15. I hope you all are doing good and your studies are going well. You all are safe. Your family, your all family members are also safe. You are taking care of yourself as well as your family members. Okay. So let us start with the question number 21 because in the last lecture we have completed till question number 20 and with respect to case scenario we have completed till question number 1 to 10. Okay. So question number 21, let us start with that. Income derived from farm building situated in immediately vicinity of an agricultural land not assessed to land revenue would be treated as agriculture income if such land is situated in. So this question is with respect to agricultural land. Agricultural land. Now, for that purpose, we must know the definition of agricultural land: 10,000 or more population, up to 2 kilometer, then 6 to 8, and so far. Okay. So अगर तुम लोग चारों ऑप्शन पढ़ेगा तो चारों ऑप्शन में से यू विल कम टू नो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट बिकॉज एन एरिया एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 kilometers from the local limit of a municipality and has a population of 80,000 as per the last census. 1 लाख तक का पॉपुलेशन चलता है उसके अंदर अगर वो 2 किलोमीटर से ज्यादा का डिस्टेंस है उस म्यूनसिपैलिटी से तो okay. So aerially if you will count, so 3 kilometer is enough and 80,000 is within the limit population, so you can consider this as what agricultural land. So इस इतने एरिया के अंदर अगर वो लैंड से मतलब फार्म बिल्डिंग अगर है तो फिर यू कैन कंसिडर इट एज व्हाट एग्रीकल्चरल लैंड. सो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट वन. Next one is question number 22. Anirudh stay in New Delhi. His basic salary. Anirudh stay in New Delhi. His basic salary is 10,000 per month. He has 60% of which form a part of a pay is 6,000 per month. HR is 5,000 per month and is entitled to a commission of 1% on the turnover achieved by him. Anirudh pays a rent of 5,500 per month. The turnover achieved by him during the current year is 12 lakhs. The amount of HR exempt under section 1013A. So if you remember 1013A, 1013A gives you exemption for the HRA. एंड एचआरए का एग्जेम्पशन कैसे मिलता है 50% और 40% ऑफ द सैलरी 50% और 40% डिपेंड्स वेर यू आर स्टेइंग 50% इज मुंबई दिल्ली चेन्नई कोलकाता ओके सो 50% इधर न्यू दिल्ली लिखा हुआ है उन्होंने तो 50% ऑफ द सैलरी 50% ऑफ सैलरी देन एक्चुअल एचआरए व्हिच यू हैव रिसीव्ड एक्चुअल एचआरए दैट मींस अगर हमारे क्वेश्चन की बात करें तो 5,000 पर मंथ दैट इज 5,000 into 12 60,000 per month. Then rent paid minus 10% of the salary. Rent paid minus 10% of salary. अब जब हम लोग इस क्वेश्चन के अंदर जब एचआरए की बात होती है तो सैलरी की बात करते हैं तो सैलरी क्या होता है बेसिक सैलरी प्लस डीए इन टर्म्स plus the term commission. Now basic salary if you will see it is 10,000 per month. DA in terms if you will see 6,000 multiplied by 60% in terms है इसका plus turnover commission is 12 lakh multiplied by 1%. Now this whole thing will be multiplied by 12 because annual basis पे calculation है और 12 लाख इंटू 1% तो वो तो ऑलरेडी हमारा टर्नओवर जो है वो एनुअल बेसिस पे ही दिया हुआ है तो 12 लाख इंटू 1% then 6,000 into 60% plus 10,000 multiply by 12 और टोटल करेंगे तो विल गेट 175,200 एंड 175,200 उसका 50% will be getting 87,600 and rent paid
Anirudh pays a rent of 5,500 per month. 5,500 into 12, you will count it is 6,000 minus 10% of 175 200. So 17520, that is 17520, you will subtract, you will get 48,480. So whichever is lower amount is exempted. So whichever is lower is 48,480. Correct option is option A. Okay. Next question number 23. Where there is a decision to increase the DA in March 21. So they have decided to increase the fairness allowances in March 21 with retrospective effect from 1st of April 2019. And the increased DA is received in April 2021. The increase is taxable. Increase is taxable. तो सबसे पहली बात तो इसका डिसीजन कब लिया जा रहा है, मार्च 2021 में लिया जा रहा है और वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से होगा, मतलब 1 अप्रैल 2019-20 से. नाउ अंडरस्टैंड दिस. With respect to 2019-20, assessing might have filed the return of income. Okay, obviously because March 21 है तो मार्च इतना लेट तो कोई करेगा नहीं, राइट. प्रीवियस ईयर 19-20 है ये, तो इसका रिटर्न अज्यूमिंग वो फाइल कर ही दिया होगा. और दूसरी चीज, वो मिलने वाला अप्रैल 21 के अंदर है. बट अगर चार्जिंग सेक्शन की अगर हम लोग बात करें तो वो सेक्शन नंबर 15 बोलता है कि ड्यू और रिसीव व्हिचएवर इज अर्लियर. तो कब मिला, कैसे मिला, उससे लेना देना नहीं है. वो मार्च 21 में डिसाइड हुआ तो इधर वो चीज ड्यू हो जाएगी उस बंदे को, विल बी टैक्सेबल इन द प्रीवियस ईयर 2020-21, बिकॉज मार्च 21 की बात है. ओके. Next question. Anand is provided with the furniture to the value of 70,000. फर्नीचर का वैल्यू जो है वो 70,000 का है. Along with the house from February 2020. The actual hire charges paid by his employer for the hire furniture is 5,000 per annum. The value of the furniture to be included along with the value of unfurnished house for the assessment at 21-22 is what? So if you will see, इधर ये जो फर्नीचर है बेटा, ये फर्नीचर एम्प्लॉयर का खुद का नहीं है. ये फर्नीचर एम्प्लॉयर ने रेंट पे लिया हुआ. ओके. एम्प्लॉयर का खुद का होता है तो हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज कर देते हैं. बट एम्प्लॉयर का अगर नहीं है तो फिर हमको क्या करना पड़ता है, जो हायर चार्जेस एम्प्लॉयर पे करता है वही हायर चार्जेस को हमको परक्यूजिट के फॉर्म में लेना पड़ता है. 5,000 पर एनम विल बी कंसिडर्ड एज अ परक्यूजिट अमाउंट इन दिस केस. ओके. नेक्स्ट. Mr. Kashyap received a basic salary of 20,000 per month from his employer. He also received children education allowance of 3,000 for 3 children. 3,000 for 3 children. Children education allowance कितना exempt होता है, किसी को अगर याद है प्लीज रिकवर करने की कोशिश करना. ₹100 per month per child. Okay. And the transport allowance of 1,800 per month. Assume he is not opting to pay tax under 115 BAC. The amount of salary chargeable to tax for the previous year 2021 is what? So if we'll see, basic salary is there. Basic salary जो वो as it is counting में आएगा 20,000 per month है, into 12 करेंगे तो we'll get 2,40,000 rupees. Then with respect to children education allowance, children education allowance, now understand over here, he is getting 3,000 rupees. Divide by, if you will divide by 3 children, so per children is getting 1,000 rupees. Now as per income tax act, you are eligible for 100 rupees only for 12 months. This is with respect to one child, so that is 1,200. So per child 1,000 or 1,200, whichever is lower, that is allowed to you. So that means 1,000 will be exempted to you. But that is also, this rule is applicable maximum up to 2 child. So 1,000 into 2, this will be how much? 2,000 rupees. So children education allowance that you got is 3,000 less exempt under section 1014. As calculated over here, 3,000 minus 2,000, you will be getting 1,000 rupees is taxable. Transport allowance is taxable only. So transport allowance is 1,800 into 12. So 1,800 into 12, you will get 21,600. And if you take a total of it, you will be getting
2,62,600. But they have not asked for the gross salary. They have asked that the amount of salary chargeable to tax. So if any deduction is there, then you have to take. Now, since it is not opting for the section 115 BAC, so deduction will be available. Deduction under section 1, that is standard deduction of 50,000 will be available to him. So 262,600 minus 50,000 will be getting 2,12,600. So 2,12,600 is the answer. I hope you got this. Okay. Next, question number 26. See, one thing that I want to clear is, uh, it may be possible that if somewhere you find कि बहुत फास्ट जा रहे हैं या फिर जो भी है, मतलब you think like that. See, in this total case scenario booklet, there are 100 questions. 100 questions of MCQ and around 25 case theories are given. That is, case study is given to us. Okay. And if I will continually explaining each and every provision on each and every question, then I will end up with making the video for 1 hour. That is useless. Why? Because this is the time where you have to revise. Okay. It's very obvious that I don't want to say such thing, but it is very obvious that when you are taking this MCQ case scenario booklet in your hand, that means you have completed your direct text at least one time. You have studied your direct text at least one time. It is very important to revise the things. Okay. Otherwise, there is no problem to me to make 1 hour video on each and every case scenario. But if I will make 1 hour on 1 hour video on each and every case scenario booklet, then just see that how much time I will consume of yourself. हम लोग का कितना टाइम वेस्ट हो जाएगा ये पर्टिकुलर टाइम में रिवाइज करने के लिए. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिवाइज द थिंग्स. तो जो भी छोटा मोटा कंसेप्ट लेके हम लोग रिवाइज करते रहेंगे, बट पूरा का पूरा यू कांट एक्सपेक्ट. Okay, so that is one clarification from my side, because if you will see another any of the professor video, then you may feel that तो एक घंटे का बनाया हुआ है सर ने फटाफट फटाफट खत्म. No, because I am more concerned about yourself rather than showing how much knowledge that I possess. Question number 26. Mr. Jagat is an employee in accounts department of Bharat Limited, a cellular company operating in the regions of Eastern India. It is engaged in manufacturing of cellular devices. During financial year 2021, following transactions were undertaken by Mr. Jagat. He attended a seminar on a perquisite valuation. उन्होंने एक perquisite valuation पे एक सेमिनार अटेंड किया था. इस सेमिनार की फीस 12,500 थी, which was paid by Bharat Limited. Okay, and tuition fees of Mr. Himanshu, son of Mr. Jagat, paid to the private coaching classes not having any tie-up with the Bharat Limited, was reimbursed by Bharat Limited. Amount fees was 25,000. Ms. Sapna, the daughter of Ms. Jagat, studied in a DPS public school owned and maintained by the Bharat Limited. Tuition fees paid for Ms. Sapna was 750 per month by Mr. Jagat. The cost of education in the similar institution 5250 per month. Okay. What amount shall be which is chargeable to tax under the head salaries in the hands of Mr. Jagat for the assessment year 21-20? सबसे पहले हम लोग इस सेमिनार वाली बात करते हैं. देखो भाई, सेमिनार का पैसा उन्होंने दिया, किसने दिया? कंपनी ने दिया. क्यों दिया? बिकॉज वो कंपनी के तरफ से ये सेमिनार अटेंड करने गया था, तो भाई ये टैक्सेबल नहीं होगा उनके हाथ में. दूसरी चीज, ट्यूशन फीस जो है ये कोचिंग क्लास की फीस है. तो कोचिंग क्लास की फीस जिसमें भारत लिमिटेड का कोई टाई अप नहीं है, तो यस, दिस अमाउंट विल बी फुल्ली टैक्सेबल. सो 25,000 इज द टैक्सेबल बीइंग अ ट्यूशन फीस. अब इसकी बात करते हैं. मिस सपना, द डॉटर ऑफ मिस जगत, स्टडीड इन डीपीएस पब्लिक स्कूल ओन एंड मेंटेन बाय भारत लिमिटेड. आपको पता होगा, अगर कोई भी स्टूडेंट, मतलब कोई भी बच्चा, ओके, जो एम्प्लॉई है, अगर उसका कोई भी चाइल्ड, अगर वो ऐसी स्कूल में पढ़ता है जिस स्कूल को ओन कर रही है कंपनी, या तो फिर कंपनी का उस स्कूल के टाइप है, उसकी वैल्यू अगर 1,000 रुपीज तक होती है तो इट विल बी फुल्ली एग्जेम्प्टेड. बट अगर 1,000 रुपीज से ज्यादा है तो इट विल बी टैक्सेबल.
तो यहाँ पे अगर देखोगे तो इसकी जो दूसरे बच्चों की फीस है वो तो 5250 पर मंथ है, तो ऑब्वियसली दिस विल बी टैक्सेबल बिकॉज इट एक्सीडिंग 1000 रुपीज. Okay, but the amount which is recovered from this is 750 rupees. So 5250 minus 750, if you will do 5250 minus the 750 rupees, will be end up with 4500, and 4500 into 12 अगर आप करोगे तो you will be getting 54,000 rupees. So this 54,000 rupees, that is a school fees of Miss Sapna, will be taxable to the employee Mr. Jagat. That means total amounts to 79,000 will be taxed. 79,000 will be taxed. I hope so it is clear to you. Once again I am telling, with respect to this Miss Sapna, मिस सपना जो पढ़ रही है वो स्कूल जो है वो भारत लिमिटेड खुद ओन कर रहा है. अगर वो खुद ओन नहीं कर रहा होता, अगर उसका इसके अंदर कोई पार्ट भी होता तो भी इसके लिए उसको एग्जेम्पशन मिलता. बट एग्जेम्पशन कितने वैल्यू तक मिलता है? एग्जेम्पशन तभी मिलता है जब उसकी वैल्यू, मतलब फीस की वैल्यू 1000 रुपए तक हो. बट इसकी जो वैल्यू है वो तो 5250 है, और इन्होंने 750 पर मंथ तो इन्होंने इनसे रिकवर किया हुआ है, तो 1000 से ज्यादा है तो ये टैक्सेबल हो जाएगा. तो जितना रिकवर किया है उतना हम इसमें से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे. 5250 माइनस 750, 4500 multiply by 12, it will comes to 54,000. So total will come to 79,000. This 79,000 possible in the hands of Mr. Jagat as a perquisite. Question number 27. Vidya received 90,000 in May 2020 towards a recovery of unrealized rent, which was deducted from the actual rent during the previous year 1819 for determining the annual value. Legal expenses incurred in relation to the unrealized rent is 20,000. This is to be ignored. The amount taxable under section 25A for assessment year 21-22 will be what? तो अमाउंट टैक्सेबल की जब वो बात कर रहे हैं तो सबसे पहले थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लेते हैं 25A के रिस्पेक्ट में. With respect to section 25A, if you remember, this section deals with the recovery of unrealized rent, recovery of arrears of rent. Okay. Now, unrealized rent and arrears of rent के बारे में पहली चीज, it is taxable in the year in which it is received. Second, it is taxable even if the assessee does not remain the owner of the such house property. Third, it is taxable and no other expenses are allowed except the standard deduction. Except the standard deduction under section 24 at the rate of what? 30%. जब स्टैंडर्ड डिडक्शन जो आपको मिलता है वही मिलेगा. So 90,000 minus 30% will be available deduction. So 90,000 minus 30% if you do, will get 63,000 rupees. 63,000 is the total. Is taxable. Okay. Next one. Ganesh and Rajesh are the co-owners of a self-occupied property. They own 50% share each. The interest paid by each co-owner during the previous year on loan taken for acquisition of property during the year 2004 is 2,05,000. The amount of allowable deduction in respect of each co-owner is. सबसे पहले मैं बता देता हूँ, जब को ओनरशिप की बात आती है तो को ओनरशिप के अंदर सम का कैलकुलेशन तो जैसे नॉर्मल रहता है वैसे ही जाता है. सिर्फ आपको एक इंटरेस्ट के लिए बेनिफिट मिलता है विथ रिस्पेक्ट टू एसओपीआर. इंटरेस्ट अमाउंट जो रहती है, इंटरेस्ट अमाउंट की जो भी लिमिट है दैट इज 2 लाख और 30,000 रुपीज मल्टीप्लाई बाय वो नंबर ऑफ को ओनर्स हो जाती है. ओके, बट सिंस इट इज एसओपीआर, सो ओवरऑल लिमिट फॉर ईच को ओनर each co-owner cannot exceed 2 lakh rupees. That is the overall limit. So in this case 2 lakh 5,000. So 2 lakh 5,000 and 2 lakh, that is the maximum limit. So whichever is less if you will do, so you will end up with 2 lakh. So 2 lakh deduction will be available to the co-owner. Okay. Next we go to question number 29. Mr. Raghav has 3 houses for self-occupation. 3 houses for self-occupation. What would be the tax treatment for assessment at 21-22 in respect of income from house property? Okay, so assessment year 1920 onwards,
गवर्नमेंट हैज मेड दिस अमेंडमेंट विद रिस्पेक्ट टू द सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी. पहले सिर्फ एक ही सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी अलाउ थी एसएससी को डिक्लेयर करने के लिए, बट अभी दो हाउस प्रॉपर्टी, दो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी एसएससी क्या कर सकता है, डिक्लेयर कर सकता है एज व्हाट, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, एंड द रिमेनिंग प्रॉपर्टी विल बी कंसीडर्ड एज अ लेट आउट प्रॉपर्टी. ओके, नाउ कौन सी दो प्रॉपर्टी एसओपीआर में रहेगी वो कौन डिसाइड करेगा, दैट विल बी डिसाइडेड बाय एसएससी. वेदर एसएससी इज स्टेइंग इन दैट हाउस प्रॉपर्टी और नॉट, इट इज इमटेरियल, बट कौन सी दो हाउस प्रॉपर्टी को उसको एसओपीआर बताना है वो एसएससी पे डिपेंड करेगा. तो वो एसएससी पहले इनकम कैलकुलेट करके देखेगा कि किस में मेरे को बेनिफिट हो रहा है. So we have to select the option accordingly. One house at the option of Mr. Raghav. No, this is not correct. Two houses at the option of Mr. Raghav. Yes, two houses at the option of Mr. Raghav would be treated as self-occupied. The other house would be deemed to be let out. Yes, this is the correct option. Okay. Question number 30. An electricity company. Electricity company. Electricity company. Electricity company. Charging depreciation on a straight line method. Charging depreciation on straight line method on each asset separately sells one of its machinery in April 2020 at rupees 1,20,000. The WDV of the machinery at the beginning of the year, that is 1st April 2020, is 1,35,000. No new machinery was purchased during the year. The shortfall of 15,000 is treated as. Now I want to discuss this point slightly, because many of you might have studied this point or somewhere or around you might have skipped this point with respect to this section 32 that deals with depreciation in case of business or profession. We all know that. Okay, mainly we focus on WDV method, but somehow we ignore SLM method. Okay, now you know that SLM method is eligible. SLM method is applicable only to the power generating unit if they opt for. Okay, so if the power generating unit is opting for this SLM, then they will get this. Okay, now when they sell the power generation assets, they sell it. So three cases are involved. One is profit with capital gain, other one is only profit, no capital gain, and the third one is there is a case of loss. Okay, now let's suppose SSC has purchased 100 rupees machinery. Let's say straight line depreciation has been charged for 2 years, depreciation of 10 rupees less depreciation of 10 rupees, so we'll get a WDV of 80 rupees. So this is the WDV amount, 80 rupees. Okay, now what they will do, let's suppose the selling price is 105 rupees. Let's suppose the selling price is 105 rupees. So now we'll calculate the profit. Selling price is 105 minus the WDV. WDV is 80. So if you will say, so profit is 25 rupees. अब इस 25 के दो टुकड़े करने के, दो टुकड़े क्या करने के, जो डेप्रिसिएशन अब तक चार्ज किया हुआ है, जो डेप्रिसिएशन अब तक चार्ज किया हुआ है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन WDV एंड द कॉस्ट. ये लोग ऐसा बोलते हैं, बट मैं ऐसे नहीं बोलता हूँ. मैं सिर्फ सिंपल सा बता देता हूँ, जो जितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया है वो टोटल डेप्रिसिएशन इधर लिख दो और बाकी का जो बैलेंस बचता है इधर लिख दो. ये 20 रुपीज का आपने पहले डिडक्शन लिया था बेटा, तो आपको ये चीज अभी यहाँ पे क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी. ये रिकवरी हो चुकी है. So this amount will be taxable under the section 41(2) as a balancing charge. Okay. Then this 5 rupees, सर ये 5 रुपए का क्या करने का, this 5 rupees will be considered as capital. ये 5 रुपया किधर चला जाएगा, कैपिटल गेन में चला. Okay. Then second case is profit no capital gain. Profit no capital gain. Let's suppose the selling price is 95. Let's suppose the selling price is 95 rupees. So if the selling price is 95 rupees less WDV 80, so we'll get the answer as 15. Now if you will see, this profit amount is less than the amount which the depreciation that is charged.
डेप्रिसिएशन कितना चार्ज किया, 20 रुपया, बट ये प्रॉफिट कितना है, 15 रुपया। तो क्या उतना पूरा एग्जॉस्ट कर पाया? बोले नहीं सर, उतना पूरा एग्जॉस्ट नहीं कर पाया। तो दिस अमाउंट इज ओनली टैक्सेबल इन पीजीबीपी। ये सिर्फ और सिर्फ टैक्सेबल होगा पीजीबीपी के अंदर। यहाँ पे कैपिटल गेन की कोई गुंजाइश ही नहीं, कैपिटल गेन विल बी नील। ओके, नाउ लेट्स से दिस is sold for 75 rupees. Now the selling price is 75 and my WDV is 80. So 5 rupees there is a loss. So since it is a loss, but this is not considered as loss actually. अभी ये लॉस है, तो ये लॉस आपको क्या मिलेगा? लॉस के लिए आपको डिडक्शन दिया जाएगा अंडर इनकम टैक्स, एंड दिस विल बी कंसिडर्ड एज व्हाट? टर्मिनल डेप्रिसिएशन एज पर सेक्शन 211. Okay, this will be considered as terminal depreciation. So this is the whole case of sale of asset under, अगर मुझे इसको पूरा का पूरा थियरी को नाम देना है तो आई कैन से दैट सेल ऑफ असेट under individual asset system. Now why I am saying individual asset system? Because as we know that there are two systems, one is individual asset system and other one is block of asset system. If assessee is power generating unit and opting for the SLM, then they have to follow individual asset system. So there will be three cases: profit with capital gain, profit without capital gain, and there is a loss. Okay, so now we'll read this question once again and we will check कि इसका क्या scene है. An electricity company charging depreciation on a straight line method on each asset separately sells one of its machinery in April 2020 at 1,20,000. So selling price is 1,20,000. The WD of the machinery at the beginning of the year April is 1,35,000. So if we subtract WDV 1,35,000, so we'll get 15,000 as a loss. And just now I told you, जब मैं तीसरा केस पढ़ा रहा था तो तीसरे केस में मैंने बोला कि ये आपको लॉस है और इस लॉस का आपको डिडक्शन मिलता है, दिस विल बी कंसीडर्ड एज टर्मिनल डेप्रिसिएशन. सो देखो जरा ऑप्शन में किधर आपको टर्मिनल डेप्रिसिएशन दिख रहा है. तो आंसर इज यस, ए ऑप्शन इज अ टर्मिनल डेप्रिसिएशन. सो दिस विल बी कंसीडर्ड एज व्हाट? टर्मिनल डेप्रिसिएशन. is not considered as short term loss, neither this is a normal depreciation or any of the above at the option of the assessee. ऐसा कुछ नहीं होता है. This will be considered as what? Terminal depreciation. ओके, मैंने अपने लेक्चर्स के अंदर पढ़ाते वक्त ये चीजें बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई हुई और मैंने बोला भी है कि इंस्टीट्यूट भले वो मेन क्वेश्चन के अंदर कभी पावर जनरेटिंग का नहीं पूछता है, बट कहीं ना कहीं पे एमसीक्यू के अंदर डर रहता है कि वो पूछ लेगा. एंड सी, उन्होंने एमसीक्यू के केस सिनारियो बुकलेट के अंदर ये चीज पूछी हुई है, डेफिनेटली वो एग्जाम के अंदर पूछने के चांस ज्यादा हो जाते. ओके, सो एज वी हैव डिसाइडेड फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 21 to 30 वी विल बी डूइंग MCQs, and now from question number 11 to 15 we will end up with the case scenario. Okay, but before we go for a case scenario basis, just take a break of 5 minutes so that we can start afterwards, after taking a break of 5 minutes. So let us start with the question number 11 now. Mr. X has set up a manufacturing unit in Chittor, Andhra Pradesh on 1st of April 2019. Chittor, Andhra Pradesh is a notified backward area and eligible to claim deduction under section 32AD. So they have already taken the deduction 32AD, because 32AD जो deduction है वो आपको 1st April 2020
पहले अगर आपने सेटअप किया होगा तो ही अवेलेबल था. During the previous year 2019-20 and 2021, Mr. X has purchased the following assets. Date of put to use 7th of June 2019. So this is in 2019-20 year. Plant and machinery X. 25th July 2019. So this is office furniture 765 400. 14 Jan 2020. So again before 1st of April 2020. 15 May 2020. And he has paid a professional fees of 35,000 each to Mr. A and Mr. B and Mr. C respectively on 10th September 2020, credited in the books of on the same day to discuss some legal matters related to business. The net profit computed in accordance with the chapter 4D of computation of business income of Income Tax Act 1961 for the previous year 2021 is 1.2 crore. Mr. X has 2000 equity shares of MNO Private Limited on 21st of October 2020. MNO Private Limited had bought back 50% shares from its shareholders amounting to 13,50,000 which were issued for 5,07,000 which include 1,15,000 towards the premium. Based on the facts Based on the fact of the case scenario given above, choose the most appropriate answer to the following questions. What would be the amount of depreciation in respect of plant and machinery Y allowable as a deduction while computing income under the head profit and gains of business or profession for the previous year 2021? मशीनरी Y के ऊपर कितना डेप्रिसिएशन का डिडक्शन मिलेगा उनको. तो पहले मशीनरी Y देखो कभी लिया उन्होंने. प्लांट एंड मशीनरी Y put to use on 14 Jan 2020. Now let us discuss about this depreciation part. Section 32 talks about the depreciation, and in section 32 there is one section 32(1)(2)(a) which is additional depreciation. थोड़ा बहुत डिस्कशन में ले लेता हूँ ये चीज. एडिशनल डेप्रिसिएशन कितना मिलता है? तो एडिशनल डेप्रिसिएशन at the rate of 20% of the cost of plant and machinery. Cost of plant and machinery is allowed to the assessee in the year in which the machinery is first put to use. It is allowed only in the first year itself. First year means the first time the machinery is put to use. Then plant and machinery does not include the four things. That means plant and machinery is installed in office building. Plant and machinery on which 100% deduction has been claimed. That means section 35. Then road transport vehicle, ship, aircraft. Okay, and the second hand plant and machinery are not included over here. This 20% depreciation is over and above the normal depreciation which you get. And if you have set up a unit in the notified backward area of West Bengal, Andhra Pradesh, Telangana and Bihar, then you are eligible for depreciation of 35% provided the unit is set up between 1st of April 2015 to 31st of March 2020. ओके, सो अगर हमारे क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो उसने सेटअप किया था 1 अप्रैल 2020 के पहले ही. 30 प्रीवियस ईयर 2019-20 में उस बंदे ने सेटअप कर लिया था. तो इज एलिजिबल फॉर अ डिडक्शन डेप्रिसिएशन एट द रेट 35%. वाई? बिकॉज वो आंध्र प्रदेश के अंदर है, नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया आंध्र प्रदेश का है. तो इज एलिजिबल फॉर दैट. द सेकेंड थिंग इज rule of 180 days is applicable obviously in case of additional depreciation, but in additional depreciation you are having the benefit कि वो 180 days के अंदर हाफ ईयर का depreciation इस साल मिलता है and balance half year you can claim in the next year. So अगर मैं सिर्फ बात करूं मशीनरी Y की, तो जब मशीनरी Y की कॉस्ट देखोगे तो कॉस्ट इज 5 लाख रुपीज. तो 5 लाख minus the normal depreciation of 15%. So 5 lakh of 15% if you will count,
that is 75,000 rupees minus 35% additional depreciation, but since वो 15 जैन को पुट टू यूज है तो सिर्फ हाफ डेप्रिसिएशन ही मिलेगा. 5 लाख इंटू 17.5 that is 87,500. So 5 lakh minus 75,000 minus 87,500, which will come to 337,500, and this is the opening WDV as on 1st April 2020. इसका 15% if you will count will get 50,625, and वो बैलेंस 17.5% आधा डेप्रिसिएशन उसको इस साल में मिल जाएगा. So total depreciation, if you will count 50,625 plus 87,500, will end up with 1,38,125. 1,38,125. For a minute. 5 lakh into 15% नहीं मिलेगा, सॉरी ये 7.5 आधा परसेंट ये भी हो जाएगा. Should be wrong amount. Sorry. 5 lakh into 7.5%, that is 37,500 minus 87,500, we get 3,75,000, and on 3,75,000 50th percentage, that is 56,250. Now if you will take a total of both, will get 1,43,750. 143,750 will be the answer. Let us check whether the answer is there or not. Yes, 143,750 the correct answer. Next question is, what shall be the total amount of depreciation? Now when they are talking about total amount of depreciation, so we have to calculate overall. Allowable as deduction while computing the profit and gains from business or profession. Total amount of depreciation कितना मिलेगा अभी उनको? तो देखो भाई, अभी जब भी हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, अभी हमने मशीनरी वाई का कैलकुलेट कर लिया ऑलरेडी 143,750. इसने कुछ बेचा नहीं है तो हम लोग नॉर्मली ऐसे कैलकुलेट नहीं करना चाहिए, बट सिंस ये एमसीक्यू है तो कैसे भी कर सकते हैं. प्लांट एंड मशीनरी एक्स 1475,340. दिस वाज आल्सो सेटअप इन द ईयर 2019, तो उसको वो एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट पूरा मिल जाएगा, और मोर देन 180 डेज के लिए है वो 15% डेप्रिसिएशन तो मिलेगा ही. 221,301 and 1475,340 into 35%, 516,369. 1475,340 minus 221,301 minus 516,369, we get 7,37,670. This is opening WDV as on 1/4/2020. Now you are eligible for only 15% depreciation. 110,651. ओके, सो इसमें 110,651 को हम लोग ऐड कर देंगे. नेक्स्ट वन इज ऑफिस फर्नीचर की अगर बात करें तो 765,400 लेस 10% depreciation. 765,400 minus 10%, so we get 688,860. इसका 10% 688,860, ये भी एक अमाउंट हो जाएगा डेप्रिसिएशन का. ओके, फिर वाई का तो हो गया. अभी 15 मई 2020 को प्लांट एंड मशीनरी जेड उन्होंने खरीदा था 8 लाख का. मशीनरी जेड 8 लाख रुपीस. इस पे 15% डेप्रिसिएशन. 8 लाख इंटू 15%, 1,20,000. एंड बहुत सारे जन इसमें भूल जाएंगे कि इधर इनको 20% एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा बिकॉज वो मशीनरी है. सो 8 लाख का 20% मिलेगा बिकॉज वो जो 35% वाला पार्ट है वो सिर्फ और सिर्फ 1920 के रिस्पेक्ट में ही था, टिल 1920 था वो. तो 1,20,000 प्लस 1,60,000 विल गेट 2,80,000 रुपीज. तो अभी पूरा अगर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने जाए 143,750 प्लस 110,651 प्लस 6,886 प्लस
2,80,000 rupees, we will get 6,03,280. I hope so you got this point. This is very important one. Question 11, 6,03,287. So let us check whether that is, yes, option is there, 6,03,287. Right? Next, Mr. X wanted to know from you whether tax is required to be deducted on professional fees paid to Mr. A, Mr. B, Mr. C respectively. If the tax has to be deducted, then what would be the rate and amount of tax to be deducted at source? तो अभी वो रिडक्शन विडक्शन सारा चीज अभी वो कंसिडर करने बोल रहे हैं. Now, how much fees they have paid? 35,000 rupees. So since the fees is more than 30,000 rupees, so TDS is to be deducted under section 194J, and it is after 14th of May 2020, that is 10 September. तो 10% का जो रेट है वो रिड्यूस होके कितना हो जाएगा? 7.5%. So 35,000 multiply by 7.5% multiply by 3% को ये था, 35,000 into 7.5% into 3, so that will be 7,875. Let us check this option. Yes, TDS amounting to 7,875 at the rate 7.5% on 1,05,000 rupees is to be deducted. Answer is correct, because 35,000 into 3 जब आप करोगे तो 1,05,000 हो जाएगा और उसका 7.5% 7,875. Okay, and in under section 194J, TDS to be deducted at the time of credit in the books of accounts or at the time of payment, whichever is earlier. Okay, so उन्होंने क्रेडिट भी उसी दिन किया, पेमेंट भी शायद उसी दिन किया हुआ है, तो उस पर्टिकुलर डे पे उनको टीडीएस डिडक्ट करना पड़े. Okay, now let us move to the next one. That is question number 11.4. What shall be the amount of tax payable by MNO Private Limited on the buyback of its shares? तो उनको कितना टैक्स भरना पड़ेगा? सबसे पहली बात, बायबैक ऑफ शेयर्स की थोड़ी बात कर ले. बायबैक ऑफ शेयर्स, बायबैक ऑफ शेयर्स के रिस्पेक्ट में दो सेक्शन काम में आते हैं अपने को. एक होता है सेक्शन 1034A एंड दूसरा होता है सेक्शन 115QA. ओके, पहले मैं 1034A की बात करूंगा. ऑब्वियसली बायबैक ऑफ शेयर्स डील विद सेक्शन 46A. ओके, बट उसकी इधर बात नहीं करूंगा क्योंकि ये बायबैक ऑफ शेयर्स है. यूनिट्स होता तो मैं जरूर बात करता. ये शेयर्स है. 1034A, 1034A क्या बोलता है? इफ एनी शेयर इज बॉट बैक बाय, whether it is a private limited company or a listed company, doesn't matter, then such buyback will be exempt in the hands of the shareholder. Exempt in the hands of shareholder. shareholder इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं भरेगा, but the company is liable to pay the tax. company is liable to pay the tax. और कंपनी को कितना टैक्स भरना होता है? कंपनी को टैक्स भरना होता है एट द रेट ऑफ 20% बेसिक टैक्स प्लस 12% सरचार्ज भरना होता है प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस. इफ यू विल काउंट इट 20 प्लस 12% प्लस 4%, इट विल कम टू 23.296%. बट ये किसके अमाउंट क्या होगी इसकी? तो अमाउंट होगा अमाउंट ऑफ बायबैक माइनस द इश्यू प्राइस. नाउ रिमेंबर, इधर इशू प्राइस लिखा है, फेस वैल्यू नहीं लिखा है, तो वो प्रीमियम वीमियम का इंफॉर्मेशन अपने को कोई रेलेवेंट नहीं रखता इधर. सो प्रीमियम इंफॉर्मेशन इज नॉट रेलेवेंट फॉर अस ओवर हियर. एमएनओ प्राइवेट लिमिटेड ने जब इशू किया था तो इशू कितने में किया था? 5,70,000, which were include 1,15,000 toward the premium. This information is irrelevant for us. 13,50,000 which were issued for 5,70,000. 13,50,000 rupees minus 5,70,000. 13,50,000 minus 5,70,000 will come to 7,80,000. and rate अभी अभी डिस्कस किया 23.296%.
1,81,708.8 तो वो 1,81,710 रुपीज हो जाएगा. लेट अस चेक वो ऑप्शन में 1,81,710. yes. Okay, I hope it is clear to you. Okay, each and every question is clear to you. If you find any question that is difficult one, or if you find that some part of the solution is not understood, then you may write in the comment box. Okay, or in description I have given my email ID to you. You can email on that also with respect to your doubt. Let us go to question number 12. Very nice question it is. Macy's ABC and Company is a partnership firm engaged in the business of sale of footwear. The partnership firm consists of three partners, A, B, and C. A and B are working partner, and C is a sleeping partner. The firm is liable to tax audit under section 44 AB of the Act. It has a book profit of 11,50,000. It has a book profit, beta. Book profit is given. Book profit. Why we use book profit? To calculate the eligible amount of the partner's remuneration. Okay, so for that purpose we require book profit. That means partner's remuneration has not been deducted from it. Okay, rest of the amount has been deducted. Following payments were made to partners as authorized by the partnership deed. Remuneration to A and B. So these are the eligible amounts. Eligible amount I am talking about right now. I am not talking about that whether this amount is allowed or not. This is eligible amount. Okay, remuneration to C 10,000. 10,000 multiplied by 12. 1,20,000. This is not eligible. Why? Because this is sleeping partner, and according to the Income Tax Act, only the remuneration paid to the working partners are allowed as deduction, and that is also to the subject to the limit of 40 clause B. Okay. Interest on capital 19.5 percentage to A and B 18,500. Again 40B will come in the picture. Only 12% interest is allowed. Here it is 19.5 percentage. So we have to calculate it. Calculate पहले से करके रख देते हैं so that तकलीफ ना हो. 19.5%, 18,500. 19.5 और 12 के बीच में कितना डिफरेंस है? 7.5% का डिफरेंस. तो 18,500 divided by 19.5 into 7.5, 7,115. This amount will be the disallowed amount. This is disallowed amount. 7,115 to each, so 7,115 into 2 it will come to 14,230. 19.5 minus 12, 7.5. 18,500 divided 18.5 into 5, 7,115 to 14,230 around to be amount. Then interest on capital at 17% to C. 17% interest on capital दे रहे हम लोग. इसको दे रहे, C को दे रहे भाई. C वाले 10,540 डिवाइड बाय 17 मल्टीप्लाई बाय 5% का कपला इधर. तो 10,540 divided by 75, only 12% out. So that is 3,100. Okay. Next one, what they are asking. The firm has following brought forward losses for the past years. Assessment year 1819, 1920 and 2021. Business loss, unabsorbed depreciation and long-term capital loss. Based on the fact of the case scenario given above, choose the most appropriate answer to the following. Question number 1. What amount of interest is allowable as deduction in the hands of the firm while computing the profit and gain from business or profession? So first of all, how much will be allowed? So 18,500 into 2. 18,500 into 2, we get 37,000 rupees. And out of 37,000, 14,320 is not allowed.
22,680, and next one is 10,540, out of which 3,100 is not allowed. 10,540 minus 3,100, we get 7,440. So if we take a total of it, we get 30,120. This much amount is only allowed to the partnership firm as per the 40B. 30,220 and 30,209. This amount will be. Okay. 18,500 per annum है वो. 18,500 divided by 19.5 into 12 करेंगे तो 11,000. 18,500 divided by 19.5 into 12 अगर हम लोग करेंगे तो वो आएगा 11,384 समथिंग. 11,384. 11,384.6 है तो 11,384 को 5 कर देंगे. दो पार्टनर थे तो 11,385 into 2 विल गेट 22,770 प्लस ये 7,440 वाला अमाउंट. ये दोनों अमाउंट को अगर आप ऐड कर दोगे तो यू विल गेट 30,210. 30,209 विल बी द करेक्ट आंसर. ठीक है. चलो आगे बढ़ते हैं. What amount of remuneration not allowable as deduction in the hands of the firm while computing the profit and gains from business profit? अभी इसके लिए हम लोग को पूरा रेम्यूनरेशन वाला पार्ट करना पड़ेगा. पहले बुक प्रॉफिट की बात करते हैं. बुक प्रॉफिट उनका कितना है? बुक प्रॉफिट इज 11,50,000. एंड एज यू नो दैट कि उसमें दो टुकड़े हो जाते हैं, 3 लाख एंड बैलेंस. बैलेंस का हम लोग को लेना होता है 60% और 3 लाख तक का लेना होता है 90%. वी गेट 2,70,000 and that is to be compared with 1,50,000. whichever is higher we get 2,70,000 and 8,50,000 into 60% if we count, so it is 5,10,000. 5,10,000 plus 2,70,000, that is 7,80,000. So this is the maximum limit which the partnership firm can give as a remuneration. This is maximum limit. Let us check how much partnership firm has given. 32,000 per month to each partner. So 32,000 into 2, दो पार्टनर है. 32,000 into 2 into 12, we will be getting 7,68,000. So this is the maximum limit. Whichever is less if we will do, so we'll get 7,68,000. ये तो पूरा एलिजिबल है. ठीक है. एक ही बंदे का नहीं रहेगा, दैट इज वो 1,20,000 वाला, बिकॉज वो मिस्टर सी को है जो कि वो स्लीपिंग पार्टनर है. सो नॉट एलिजिबल वाला केस, दैट इज 1,20,000 इट इज गिवन टू स्लीपिंग पार्टनर. दैट्स व्हाई इट इज नॉट एलिजिबल, राइट. नेक्स्ट वन, what is the due date of filing of return of income for Mr. A and Mr. C for the assessment year 21-22? So with this respect, we have to again revise section 139(1), voluntary return or the return of income. 139(1) talks about return of income and in that only the due date for the return. And due date वो है कि अगर किसी पार्टनरशिप फर्म को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट करवाना पड़ता है तो फिर उनकी ड्यू डेट हो जाती है 31st of October of the assessment year. So that is 31st October 2021. And second thing, for partners also the due date will be same 31st October. Okay, now there is no distinguish between working partner and the sleeping partner in respect of the due dates. Okay, ये पहले था prior to assessment year 21-22. this was there कि वर्किंग पार्टनर रहेगा तो उनको ऐसे करने का है, स्लीपिंग पार्टनर रहेगा तो ऐसे करने का है, बट अभी ऐसा कुछ भी नहीं है. ओके, तो अगर आप
ऐसे पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर हो जिसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट होने वाले हैं, देन यू हैव टू फाइल द रिटर्न अप टू 31st of October till the time when the partnership form is required. तो ऑप्शन ए देखते हैं 31st जुलाई, नो. 31st जुलाई 2021 फॉर मिस्टर सी एंड 31st अक्टूबर, नो. 31st October 2021 for both Mr. and Mr. C, answer is C, yes. Okay, what would be the income under the head profit and gains from business of profession in the hands of ABC and company for the assessment year 21-22? What will be the amount? Okay, so देखो भाई उनका बुक प्रॉफिट जो था 11,50,000 था. नाउ एज यू नो दैट जब हम लोग बुक प्रॉफिट की बात करते हैं बेटा, तो बुक प्रॉफिट वाली चीजें ऑलरेडी क्या हो चुकी रहती है, सब कुछ डिडक्शन वगैरह लेके सिर्फ एक ही डिडक्शन बाकी रहता है, दैट इज पार्टनर्स रेम्यूनरेशन का. तो यहाँ पे पार्टनर्स रेम्यूनरेशन का डिडक्शन आ जाएगा 7,68,000 का. तो 11,50,000 माइनस 7,68,000, 3,82,000. अब ये प्रॉफिट अभी बच रहा है मेरे पास, तो प्रॉफिट जब मेरे पास बचेगा तो मैं देखूंगा कोई पास्ट लॉसेस अगर मेरे पास है तो उसको मैं एडजस्ट करने की कोशिश करूंगा. अब पास्ट लॉसेस के अंदर इफ यू विल सी देयर आर बिजनेस लॉसेस, और बिजनेस लॉसेस का मैं टोटल करता हूँ, देखता हूँ 3 लाख के अंदर वाला लिमिट है क्या, 78,000 एंड 1,05,670, सो 2,09,670, 2,09,670 टोटल है. तो 2,09,670 को हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ से माइनस कर देंगे 2,09,670, 3,82,000 माइनस 2,09,670, 1,72,330. Where is this option 172.30 there? तो इतना प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस ऑफ प्रोफेशन आ जाएगा इन द एंड ऑफ एबीसी एंड कंपनी फॉर द असेसमेंट ईयर 2022, 1,72,330. ओके, आई होप इट इज क्लियर. क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 12 दोनों ही बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं. प्लीज मेहरबानी करके बहुत अच्छी तरीके से, नहीं अगर कुछ समझाओ तो वापस से थोड़ा रिवाइंड कर लो, ले लो वीडियो को और देख लो. पर दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को, क्योंकि उसमें डेप्रिसिएशन वाला पार्ट है, देन वो 3212A वाला आंध्र प्रदेश वाला पार्ट आ गया था, देन इस क्वेश्चन के अंदर 40B रिलेटेड पार्ट आ चुका है. तो इसके लिए बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन को बहुत ढंग से कर. ओके, नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13. ओके, क्वेश्चन नंबर 13, वेरी नाइस क्वेश्चन इट इज. वंस अगेन बहुत सारे चीजों का मिक्सचर है इस क्वेश्चन के अंदर. क्वेश्चन पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि क्वेश्चन के अंदर कितने टाइप के क्या मिक्सचर दिए हुए हैं, व्हाट टाइप ऑफ मिक्सचर्स आर गिवन इन दिस क्वेश्चन. ओके, so let us start question number 13. Mr. Sarthak, age 37 years, a share broker, sold a building to his friend Anay, who is dealer in automobile parts, spare parts for 120 lakhs. So actual consideration is 120 lakhs. जो इंफॉर्मेशन आपको मिलती जाती है केस सिनारियो के अंदर, वो चीजें पहले ही आपको लिख लेनी बहुत अच्छी है. On 10th of November 2020, when the stamp duty value was 150 lakhs. तो जब भी उन्होंने सेल किया तो भी 120 लाख और 150 लाख का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू दिया हुआ है और 120 लाख का एक्चुअल कंसिडरेशन. द एग्रीमेंट वाज हाउएवर एंटर्ड इनटू 1st of September 2020. एग्रीमेंट पहले ही बन चुका था 1st September 2020 को, when the stamp duty value was 140 lakhs. Mr. Sarthak had received a down payment of 15 lakh by a cross check from Anay on the date of agreement. एग्रीमेंट के डेट पे मतलब 1 सितंबर 2020 को ही उनको 140 लाख 15 लाख रुपीस मिल चुका था एज अ डाउन पेमेंट. Mr. Sarthak purchased the building rupees 95 lakh on 10th of May 2017. Further, Mr. Sarthak also sold an agricultural land situated in village which has a population of 5,800 for 60 lakhs
to Mr. Vivek on 1st of March 2021, which he acquired on 15 June 2014 for 45 lakhs. The stamp duty value of agricultural land on 1st March 2021 is 65 lakhs. CII is given. Based on the fact of the case scenario given above, choose the most appropriate answer to the following question. Is there any requirement to deduct the tax at source on consideration paid or payable for transfer of a building and agricultural land? अगर आपको याद हो तो ठीक है, नहीं याद है तो मैं रिवाइज करवा देता हूं. एक सेक्शन है इनकम टैक्स लॉ के अंदर, सेक्शन 194IA, which requires to deduct the TDS at the rate 1% when your actual consideration exceeds 50 लाख रुपीस. अगर 50 लाख रुपए से ज्यादा की कीमत अगर हाउस प्रॉपर्टी की है तो आप अगर दे रहे हो तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ता है. किसको डिडक्ट करना पड़ता है? जो बंदा पेमेंट देने वाला है, मतलब परचेजर को टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा. ओके, तो क्या वो पूछ रहे कि क्या यहाँ पे टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत पड़ेगी? तो बोले हाँ, इधर टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत पड़ेगी, बट वो बोल रहे कि बिल्डिंग और एग्रीकल्चरल लैंड दोनों पे पड़ेगा क्या? तो अपने को आंसर देना पड़ेगा. इज देयर एनी रिक्वायरमेंट टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स ऑन कंसिडरेट पेड और पेएबल फॉर ट्रांसफर ऑफ बिल्डिंग एंड एग्रीकल्चरल लैंड? सो आंसर विल बी व्हाट? आंसर विल बी बी. व्हाई बी सर? बिकॉज अगर आप देखोगे वो जो एग्रीकल्चरल लैंड बेचा हुआ है, किसको बेचा है ये एग्रीकल्चरल लैंड? मिस्टर सार्थक परचेज द बिल्डिंग 95 लाख. सार्थक सोल्ड एग्रीकल्चरल लैंड विलेज टू मिस्टर विवेक. पॉपुलेशन ऑफ 5800, 10,000 से कमती वाला पॉपुलेशन एग्रीकल्चरल लैंड माना जाएगा. तो एग्रीकल्चर लैंड के लिए 194 एप्लीकेबल नहीं होता है. इसके लिए जो आंसर है वो सिर्फ बी रहेगा. मिस्टर अनय इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट द टैक्स एट सोर्स अंडर सेक्शन 194IA. Okay, I hope it is clear to you. Next question, what amount of capital gain are chargeable to tax in the hands of Mr. Sarthak in respect of transfer of building? तो ट्रांसफर ऑफ बिल्डिंग की वो जब बात कर रहे हैं तो सबसे पहले ये चीज समझ लो कि इधर सबसे पहले एफपीओसी के लिए अपने को देखना पड़ेगा. अब एफपीओसी के अंदर while deciding the एफपीओसी, सो 50C बीच में आएगा, सिंस इट इज अ बिल्डिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी है ये, तो 50C बीच में आएगा. और 50C थोड़ा बहुत देख लेते हैं क्या होता है 50C के केस में. In 50C, we have to check 50C. This section is with respect to FPOC in case of immobile property. Capital gain के अंदर you might have studied this. Okay. ये सेक्शन क्या बोलता है? 50C बोलता है if your actual consideration is exceeding 110% of, sorry, if your stamp duty value exceeding 110% of actual consideration, then your FPOC is counted as stamp duty value. And अगर रिवर्स केस है, that is up to 110% of actual consideration है, तो फिर FPOC जो है वो actual consideration लिया जाएगा. सवाल ये उठता है SDV कौन से डेट का ले? तो SDV लेने के लिए अपने को ये चेक करना पड़ेगा कि बिफोर द डेट ऑफ एग्रीमेंट, ऑन और बिफोर द डेट ऑफ एग्रीमेंट, whether any token amount is received by way of what? By way of account payee check or a bank draft or RTGS, NEFT, then credit card, debit card and so far, जो प्रिस्क्राइब मोड बोले वो. बट इसमें 3 चीजें नहीं होती है. पहला, कैश में नहीं होना चाहिए. दूसरा, बैरर चेक नहीं होना चाहिए. एंड तीसरा, क्रॉस चेक नहीं चलता. सर क्रॉस चेक और अकाउंट पेई चेक क्या डिफरेंस है? भाई अकाउंट पेई चेक ऐसे लिखा जाता है, अकाउंट पेई ओनली. क्रॉस चेक खाली ऐसे 2 लाइन मार दी जाती है तो उसको क्रॉस चेक बोला जाता है. तो क्रॉस चेक के लिए वो रूल एप्लीकेबल नहीं होता है. तो ये 15 लाख रुपए का टोकन अमाउंट आया, इसका कोई रेलेवेंस नहीं है. ये स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू नहीं ली जाएगी. स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू क्या ली जाएगी? 150 लाख स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लिया जाएगा. अभी 150 लाख को कंपेयर करेंगे 110% ऑफ एक्चुअल कंसिडरेशन. तो 110% ऑफ 120 कितना होता है? 132. So yes, stamp duty value is exceeding the 132, so stamp duty value will be considered as the FVOC, that is 1 crore 50 lakh rupees. So 1 crore 50 lakh is the FVOC. अब वो चीज जो बिल्डिंग है वो बिल्डिंग
लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है वो देखने के लिए ये देखना पड़ेगा उन्होंने परचेस कब किया। 10 मई 2017 को उन्होंने परचेस किया था। सेल कब कर रहे हैं? 10 नवंबर 2020 को वो सेल कर रहे हैं। 10 नवंबर 2020 को सेल कर रहे हैं। ओके, सो अगर आप देखोगे 10 नवंबर 2020 को अगर सेल है तो ये ऑब्वियसली 2 साल बाद है, तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। तो इधर जब हम लोग बात करेंगे कैलकुलेशन की, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं माना जाएगा, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माना जाएगा। कितने में परचेस किया था? 95 लैक्स में परचेस किया था। 95 लाख इनटू ईयर ऑफ ट्रांसफर का CII that is 301 divide by year of purchase का CII that is 272. So 95 lakh divided by 272 into 301 will be getting 1 crore 5 lakh 12,867. If we subtract this, so we'll be getting 44 lakh 87,133. 44,87,133. Let us check whether it is there or not. Yes, this amount is there. 44,87,132. तो 1 रुपए का मोर और लेस डिफरेंस तो रहेगा। नेक्स्ट, assuming that Mr. Sarthak has other income exceeding basic exemption limit, the tax payable excluding the surcharge and health and education cess on a transfer of a building and agricultural land would be what? एग्रीकल्चर लैंड वाला पार्ट तो बेटा माना ही नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया इज नॉट अ कैपिटल असेट, सो देयर विल बी नो कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 44,87,132 का है, so 132. So as per section 112 the tax rate will be 20% will be applied. So 44,87,132 multiplied by 20%, 8,97,430. इसमें हेल्थ एजुकेशन से ऐड मत करना। वाई? बिकॉज एक्सक्लूडिंग बोला हुआ है इन्होंने। तो 8,97,430 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, what amount of income is chargeable to tax in the hands of Mr. Anay in respect of transfer of building? Mr. Anay के हैंड में कितना टैक्सेबल होगा? ओके, तो यहाँ पे कौन सा सेक्शन आएगा सर? ये क्या बात कर रहे हैं? ये बात कर रहे हैं 56 to 10 की। If you remember 56 to 10, receipt of immobile property for low consideration, that is for a inadequate consideration. इनकी बिल्डिंग की जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू थी वो कितनी थी? 150 लाख थी, बट दे हैव रिसीव्ड फॉर हाउ मच? 120 लाख रुपीस। तो मिस्टर अनय के हाथ में ये सस्ते भाव में आया है। सस्ते भाव में कितना? 150 माइनस 120 दैट इज 30 लाख का डिफरेंस जो है ये अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। किसके हाथ में? मिस्टर अनय के हाथ में। नाउ अगेन द सेम रूल एप्लीकेबल ओवर देयर आल्सो, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू मोर देन 110% एक्चुअल कंसिडरेशन. So since we have already checked this part over here, so we are not again checking this part over here. Okay, so Mr. Anay is liable to pay tax on 30 lakh rupees under income from other sources, 56 to 10 applicability. Okay, I hope so it is clear to you. See the institute is how the institute is playing with you. Institute wants that you must have the knowledge of each and every provision. If you are not having the knowledge of each and every provision, then you may lack in case scenario and the MCQ, and that's why I already say in my lectures कि वो 100 मार्क का पेपर है, बट वो जो 30 मार्क्स MCQ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इधर या तो तुम मार्क्स ले सकते हो या तो पूरा मार्क्स गवा दोगे। okay, and this is the reason why I am solving all these questions for you people. Okay, let us move to the next question. Question number 54, sorry not 54, 14 question। 54 एज पढ़ लिया उसका। Mr. Narendra Sharma, age 54 years, an Indian citizen carrying on a retail business in Dubai. An Indian citizen carrying on a retail business in Dubai. He frequently visits India for a business purpose. Detail of his visit in India are as follows. Came to India on 3rd December 15, left India on this date. Again came to India on this date, left India on this date. Came to India on this date, left India on this date. Okay. Afterward, is decided to shift permanently in India. Now he decided permanently shifting to India.
and closed his business in Dubai. So he came to India on 27 November 2020 and joined Indian company Cosmos Heritage India Limited at a registered office in Mumbai from 1st December 2020. So from 1st December 2020 onwards, he has joined one company, Cosmos Heritage India Limited. अभी वो क्या बोलना चाहते हैं? From December 2020, he has taken a flat on rent 60,000 per month. Flat on rent 60,000 per month from Mr. Sarthak, an Indian resident, and Mr. Sarthak has provided his PAN number to Mr. Narendra Sharma. Following details of his salary income earned in India: 275, 675. Now see, he has joined on 1st December. So December and 3 months, that 10 Feb March, 4 months. तो पहले ही मैं कैलकुलेशन पूरा इधर करके रख देता हूँ. 275, 675, ताकि अगर आगे जरूरत पड़े तो हम लोग फटाक से वो अमाउंट ले सके. यहाँ पे 11,02,700. Cost of living allowances forms a part of retirement benefit. This is a kind of dearness allowances. नाम इसका अलग दे दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि उसका नेचर चेंज हो जाएगा. कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस उसके लिए ही होता है. 1,20,200 multiplied by 4, so we'll get 4,80,800. House rent allowances they are getting of 4 months, 137, 838 into 4, 551, 352, and other allowance 1,56,000 per month, 1,56,000 into 4, 6,24,000. For the period from April 2020 to November 2020, his business income arising in Dubai is 26 lakh. का बिजनेस इनकम जो दुबई में है वो 26 लाख का है. He is not liable to pay tax, any tax in Dubai. He is not liable to pay any tax in Dubai. अगर ये लैंग्वेज, ये वर्ड पढ़ के अगर आपको कुछ समझ में आ रहा हो तो प्लीज अंडरस्टैंड ओवर हियर. मैं आगे क्वेश्चन नहीं पढ़ता हूँ, मैं सीधा यहां से ही बता देता हूँ कि ये चीज आपको कहीं ना कहीं पे कहां पे लेके जाने वाला है. ये कहीं ना कहीं पे आपको लेके जाएगा सेक्शन नंबर 61A पे. 61A पे लेके जाएगा. दैट इज अ कंसेप्ट ऑफ डीम रेसिडेंट विच इज इंट्रोड्यूस्ड in this budget only, that is from assessment year 21-22 onwards. This is applicable. Deemed resident concept. Deemed resident concept क्या बोलते हैं? Any Indian citizen who is settled abroad, कोई भी इंडियन सिटीजन हो जो वो ऐसा बंदा है जो अब्रॉड के अंदर सेटल हुआ बंदा है. दिस प्रोविजन इज नॉट एप्लीकेबल इफ इज अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन एन इंडियन सिटीजन. ओके, he must be an Indian citizen only. If any person who is Indian citizen is settled in abroad and he is in such a country in which he is not liable to pay the tax, मतलब वो टैक्स हेवन वाली कंट्री के अंदर है. टैक्स हेवन वाली कंट्री मतलब ऐसी कंट्री के अंदर है जहां पे टैक्स लायबिलिटी नहीं आती है. ओके, तो ऐसे बंदे की लिए उन्होंने एक प्रोविजन बनाया, दैट इज सेक्शन 618 डीम्ड रेसिडेंट प्रोविजन बनाया उन्होंने. और ये डीम रेसिडेंट प्रोविजन क्या बोलता है कि अगर उस बंदे की इंडियन इनकम जो है, इंडियन इनकम मतलब उन्होंने ऐसा लैंग्वेज लिखा हुआ है, टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग द इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस इज एक्सीडिंग ₹15 लाख, देन सच पर्सन विल बी कॉल्ड एज डीम रेसिडेंट. और इनका नेचर क्या होगा? रेसिडेंट बोल दिया तो फिर बोलना पड़ेगा ना ऑर्डिनरी या नॉट ऑर्डिनरी, तो ये नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट रहेगा. तो डीम रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के इसका स्टेटस माना जाएगा. कि मैंने शॉर्ट में बता दिया आपको 61A. ओके, फॉर ब्रीफ यू हैव टू रिफर टू द चैप्टर रेसिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम. ओके, तो मैंने शॉर्ट में आपको ये डिस्कशन दे दिया क्योंकि कहीं ना कहीं पे जब ये ऐसा लिखा ना नॉट लायबल टू पे टैक्स इन दुबई, तो वो चीज इधर कंसिडर होती है. बट अभी ये चीज भी देखना पड़ेगा कि इसकी इनकम जो है इंडियन सोर्सेस से जो इनकम है वो 15 लाख से ज्यादा हो रही है या नहीं हो रही है. तो ऑब्वियसली हो जाएगी इधर, बिकॉज आप देखो 11,02,700 का सैलरी है, देन 4,80,800 का डियरनेस अलाउंस है. तो अगर इसकी ये दोनों का ही टोटल ले ले, पूरा कैलकुलेशन भी ना करे, और ये दोनों का ही अगर आप टोटल ले लोगे तो ये दोनों का टोटल ही 15 लाख के अराउंड हो जाएगा. तो 15 लाख के अबव इनकम जाएगी इसकी. तो ही विल बी कंसीडर टू बी एज अ डीम रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी. आई डोंट नो कि वो क्वेश्चन क्या पूछने वाले, बट मैंने बता दिया.
He is active in equity shares trading after coming to India. Following are the details of his portfolio. First Mile Limited, 10 December 2020, 250 shares. Price per share is 203. ब्रोकरेज 1%, तो ये कॉस्ट में ऐड हो जाता है. देन रेनबो लिमिटेड 10 दिसंबर 2020, 503 के प्राइस पे ब्रोकरेज ऐड हो जाएगा. परचेज मेगा सर्विस लिमिटेड 12 दिसंबर 1.5%. फर्स्ट स्माइल लिमिटेड 1.8%, 325 परचेज प्राइस. सेल है तो सेल के अंदर बेटा ब्रोकरेज जो माइनस हो जाता है. नेक्स्ट वन इज परचेज मेगा सर्विस लिमिटेड 15 दिसंबर 2020, 110 अगेन ब्रोकरेज ऐड हो जाएगा. सेल मेगा सर्विस लिमिटेड 26 दिसंबर 2020, 150, 100 सेल है तो माइनस. परचेज रेनबो लिमिटेड 28 दिसंबर 200, 385 ऐड हो जाएगा, ये भी ऐड हो जाएगा. सेल है तो माइनस और माइनस. ओके मुझे नहीं पता वो क्या क्वेश्चन पूछने वाले, बट ये सारी चीजें करके रखने की केस सिनारियो के अंदर, ताकि आगे कोई भी क्वेश्चन पूछे अपने को उसका आंसर पता होना चाहिए. फॉलोइंग एडिशनल डिटेल इज ऑल्सो गिवन बाय मिस्टर नरेंद्र. First Smile Limited issued a bonus shares on 1:1 on 1st of February 2021 and credited in the share in his account on 10th of Feb 2021. तो फर्स्ट फेब को उन्होंने 1:1 पे बोनस दिया, तो जितना शेयर हेल्ड किया होगा उतना पूरा आपको वापस से बोनस भी मिलने वाला है. देन रेनबो लिमिटेड डिक्लेयर्ड एन इंटरिम डिविडेंड ऑफ 200% on 20th Feb 2021. Face value of each share is ₹10. The record date is 31st of January 2021. Record date 31st जनवरी दिया हुआ है. रेनबो लिमिटेड के पहले परचेस हम लोग देख लेते हैं कि उनका रिकॉर्ड डेट के पहले तो उन्होंने परचेस कितने किए थे. रेनबो लिमिटेड के इधर 50 शेयर आपको दिखेंगे. देन इन रेनबो लिमिटेड 200 शेयर्स. देन थर्ड जेन को भी 100 शेयर. उसका रिकॉर्ड डेट जो है वो 28 फेब 20, रिकॉर्ड डेट जो है वो 31 जनवरी. 31 जनवरी तो ये सारे शेयर्स तो 200 प्लस 100 प्लस 50 शेयर्स ऊपर भी थे, तो ये 350 शेयर्स हो गए. तो 200 प्लस 100 प्लस 50 शेयर्स, 350 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 10 रुपीज का फेस वैल्यू है और 200% का डिविडेंड है इंटू 200%, विल बी गेटिंग 7,000 रुपीज. ये डिविडेंड इनकम है. डिविडेंड इनकम इज टैक्सेबल इन द ईयर इन विच इट इज रिसीव्ड. 31 जनवरी 2021 रिकॉर्ड डेट इस डेट को आया है, तो इस प्रीवियस ईयर में ये अमाउंट क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी. ही डज नॉट ऑप्ट टू पे टैक्स अंडर एज पर सेक्शन 115 बीएसई, तो वो बोलते मेरे को 115 बीएसई नहीं चाहिए. Now, based on the fact of the case scenario given above, choose the most appropriate answer to the following question. What is the residential status of Mr. Narendra for the previous year 2021? जैसे मैंने ऊपर आपको बता दिया, भविष्यवाणी की थी कि वो क्वेश्चन इसके ऊपर पूछेंगे, तो डेफिनेटली उन्होंने पूछ लिया ही. ओके और एज वे डिस्कस कि ये 61A सेक्शन यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगा, तो उसको डीम रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट का करार दिया जाएगा. तो डी दैट इज डीम रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट. क्यों? बिकॉज ऑफ सेक्शन 61A. अभी भी बोल रहा हूं, अगर ये 61A वाली चीज अगर आपने नहीं पढ़ी है तो रेसिडेंशियल स्टेटस चैप्टर के अंदर वापस चले जाओ, 61A पहले पढ़ लो, फिर उसके बाद ये क्वेश्चन को वापस से रेफर कर. ओके नेक्स्ट, which of the following statement is correct in respect of dividend paid by Rainbow Limited to Mr. Narendra? Dividend received from Rainbow Limited is exempt. नहीं बाबा, ये तो पहले था, अभी नहीं है. Dividend received from Rainbow Limited is taxable in the hands of Mr. Narendra, but since the dividend is less than 10,000, no tax is required to be deducted at source. तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि डिविडेंड के ऊपर टीडीएस का प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाता है जब वो 5,000 रुपए से बढ़ जाता है. Okay. Next, dividend received from Rainbow Limited is taxable in the hands of Mr. Narendra and tax of 525 is required to be deducted at source. तो देखते हैं डिविडेंड की अमाउंट कितनी. डिविडेंड की अमाउंट कुछ कितनी आ रही है, 7,000 रुपीज को डिविडेंड का अमाउंट आ रेनबो लिमिटेड का. ओके एंड 7,000 मल्टीप्लाई बाय 7.5%, 525 रुपीज. सेक्शन 194 को रेफर करना पड़ेगा यहाँ पर.
194 ने बोला हुआ है कि 10% डिविडेंड 10% टीडीएस कटता है, बट वो रिलैक्सेशन है कोविड का। अगर 14 मई से लेकर 31 मार्च 2021 के बीच में दिया तो 7.5%। सो डिविडेंड की अमाउंट 7,000 रुपया, 5,000 से ज्यादा और 7.5% तो 525। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। What shall be the TDS liability of Mr. Narendra for a rent paid to Mr. Sarthak? तो यहाँ पे 194 IB सेक्शन आएगा। क्यों? बिकॉज 194 IB सेक्शन क्या बोलता है? 194 IB सेक्शन ने आपको ये चीज बोली हुई है कि कोई भी इंडिविजुअल है या तो HUF है, वो बंदा अगर रेंट पे कर रहा है एंड इफ द रेंट इज मोर देन 50,000 पर मंथ, अगर रेंट की अमाउंट जो है वो 50,000 रुपये पर मंथ से ज्यादा है, तो फिर उस बंदे को 5% के हिसाब से टीडीएस डिडक्ट करना पड़ता है। और कोविड रिलैक्सेशन की वजह से ये रेट हो गया 3.75%। ओके, तो क्वेश्चन के हिसाब से अगर देखोगे तो मिस्टर नरेंद्र कितना रेंट पे कर रहे हैं? 60,000 रुपए का रेंट पे कर रहे हैं, 60,000 रेंट पे कर रहे हैं वो। तो अगर ये 60,000 का रेंट पे कर रहे हैं तो इनको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। अब टीडीएस कब डिडक्ट करना होता है? टीडीएस डिडक्ट करने के लिए आपको उसकी ड्यू डेट देखनी पड़ती है। क्या है इस सेक्शन के लिए? क्या बोला हुआ है इस सेक्शन के लिए? बोला हुआ है पहला, अगर लास्ट मंथ ऑफ टेनेंसी है तो तभी टीडीएस डिडक्ट कर लो, और अगर आप घर खाली करके नहीं जा रहे हो तो फिर लास्ट मंथ ऑफ प्रीवियस ईयर जो है कभी, मतलब मार्च में टीडीएस डिडक्ट कर लो। एंड तीसरा, अगर आप वेकेंट करके जा रहे हो तो लास्ट द मंथ इन विच द प्रॉपर्टी इज वेकेटेड, मंथ इन विच प्रॉपर्टी वेकेटेड, इन दोनों में से जो पहले तारीख आ जाएगी उस तारीख के ऊपर, विच एवर इज अर्लियर। ओके, सो लास्ट मंथ ऑफ टेनेंसी, लास्ट मंथ ऑफ प्रीवियस ईयर, ये दो केसेस तो मुझे कहीं पर दिखे नहीं क्वेश्चन के अंदर, तो ऑब्वियसली लास्ट मंथ ऑफ द प्रीवियस ईयर, मतलब मार्च में टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। कितना टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा? 60,000 का रेंट है, 60,000 का रेंट मल्टीप्लाई बाय 4 महीना इंटू 3.75, कंसेशनल रेट अभी दिया हुआ है गवर्नमेंट ने, तो 60,000 इंटू 4 इंटू 3.75% विल बी गेटिंग 9,000 रुपीज। ओके, एंड इफ यू रिमेंबर दैट कि जो टीडीएस अमाउंट डिडक्ट करनी होती है वो टीडीएस अमाउंट कैन नॉट एक्सीड द लास्ट मंथ का रेंट। तो 9,000 और 60,000 विच एवर इज लोअर, तो 9,000 और 60,000 विच एवर इज लोअर, ऑब्वियसली 9,000 का टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। कब डिडक्ट करोगे? मंथली बेसिस पे मत करना, प्रीवियस ईयर जो लास्ट है उस पर ही करना। तो ऑप्शन देखते हैं ऑप्शन कौन सा करेक्ट है हमारे लिए। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट। मिस्टर Narendra is liable to deduct the TDS under section 194 IB of rupees 9,000 in the month of March 2021. Okay, this is the correct one. इंस्टीट्यूट ने यहाँ पर आंसर करेक्ट लिखा हुआ है, मतलब जो एक्सप्लेनेशन है वो करेक्ट है, ऑप्शन लिखने में गलती कर दी है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट, तो सी की जगह पे डी कर दें। Next one is, in what would be the income chargeable to tax under the head income from salaries? Income from salary में कितना आएगा सैलरी टैक्सेबल? तो अभी उसके लिए वापस ऊपर जाना पड़ेगा और ऊपर जाके सारी चीजें देखनी पड़ेगी अपने को। तो बेसिक सैलरी 11,02,700 है, ईयरनेस अलाउंस 4,80,800 है, हाउस रेंट अलाउंस उसको इतना मिल रहा है, अदर अलाउंसेस इतना मिल रहा है। तो सबसे पहले हम लोग ये तीन चीज का टोटल कर लेते हैं। 11,02,700 किसका किसका टोटल बोल रहा हूँ पहले सुन लो, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3 अदर अलाउंसेस। 11,02,700 प्लस 4,80,800 प्लस 6,24,000 will get 22,07,500। हाउस रेंट अलाउंस के लिए आपको एग्जेम्पशन मिल जाता है 1013A के अंदर में, और 1013A का एग्जेम्पशन क्या मिलता है? 50% और 40% ऑफ सैलरी। 50% ऑफ द सैलरी, सैलरी में ये दोनों अमाउंट आएगी 11,02,700 प्लस 4,80,800, ये दोनों का टोटल करना पड़ेगा, दैट इज 15,83,500। तो 15,83,500
उसका 50% अगर आप कैलकुलेट करो, सो यू गेट 7,91,750. Then actual amount of HRA received, that is 5,51,352, and rent paid, that is 60,000 into 4, 2,40,000, minus the 10% of salary, that is 15,83,500, उसका 10%. So 15,83,500 उसका 10% minus 2,40,000, we will do, we'll get 81,650. Whichever is lower, if you will calculate, 81,650 will be the answer. तो 81,650 इसमें से क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे. So 551,350 to minus 81,650 will be getting 4,69,702. तो 469,702 इधर टोटल में ऐड हो जाएगा, एंड जब इसका टोटल आप ऐड कर दोगे you get 26,77,202 माइनस 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन इस बंदे को मिल जाएगा. So we'll be getting 26,27,202. Let us check whether this answer is there or not. 26,27,202. Yes, the option is correct. Okay. Now, what is the amount of short term capital gain? बहुत मेहनत करवा रहा है इंस्टीट्यूट इस क्वेश्चन के अंदर. What is the amount of short term capital gain chargeable to tax in the hands of Mr. Narendra on sale of shares for the previous year 2021? तो सेल ऑफ शेयर्स ऊपर हमारे पास है. अभी सेल कौन कौन से कंपनी के हैं, तो पहले देखो फर्स्ट स्माइल लिमिटेड के शेयर्स है, दूसरा जो है वो फर्स्ट स्माइल लिमिटेड का शेयर्स है, और मेगा सर्विस लिमिटेड का शेयर. और एक इधर और एक चीज है, बोनस भी इशू हो रहा है फर्स्ट स्माइल का 1 Feb 2021. तो पहले तो हम लोग है ना फर्स्ट स्माइल को देख लेते हैं. देखो भाई, आपके पास 250 शेयर्स थे और 250 में से आपने 100 बेच दिए, तो आपके पास बचे हुए 150. ओके. फिर 1:1 के बीच में आपको बोनस मिलने वाला था, और फिर वापस से आपने जो ट्रांजेक्शन किया वो 23 मार्च को किया, मतलब तब तक बोनस आ चुका होगा. तो 1:1 मतलब 150 शेयर्स और आपके पास आ चुके होंगे, तो 150, तो टोटल मिला के 300 शेयर्स है. और आपको पता होगा बोनस शेयर्स के लिए बेटा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो रहता है वो नील रहता है, क्योंकि आपको कोई कॉस्ट बेयर नहीं करनी है. तो हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा शॉर्टकट से करेंगे. शॉर्टकट से कैसे करेंगे, जितने भी अभी अपने को दिख रहा है कि वो सारे के सारे शेयर्स वगैरह वो बेच ही रहा है जो भी है सिचुएशन में, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको शॉर्टकट कैसा करेंगे, हम लोग बटन यूज करेंगे M+N_M- का. एलसी पे जो M+M- का बटन है उसको हम लोग यूज करेंगे. जब परचेज है तो परचेज के टाइम पे हम लोग M- दबाएंगे, सेल है तो हम लोग M+ को प्रेस करेंगे. ओके. नाउ परचेज फर्स्ट स्माइल लिमिटेड 250 इंटू 203. मैं एक ट्रांजेक्शन आपको लिख के बता देता हूँ कि मैं कर रहा क्या वाला. 250 इंटू 203 आप करोगे, फिर इजिकल टू प्रेस करोगे, जो भी अमाउंट आएगा उसमें आप प्लस करोगे 1.5%. यू विल ऐड 1.5% बिकॉज इट इज अ ब्रोकरेज. और फिर ये जो आंसर आएगा इसको आप M- कर देना. ओके. सो 250 इंटू 203 प्लस 1.5%, इसको आप M- कर दो. फिर बाद में मेगा सर्विस लिमिटेड के भी 150 शेयर है, 150 मल्टीप्लाई बाय 82 प्लस 1.5% ब्रोकरेज, अगेन M-. ओके. देन फर्स्ट स्माइल के जो शेयर्स है वो 100 शेयर्स उन्होंने बेचे, तो 100 इंटू 325 माइनस ब्रोकरेज इसमें से करना पड़ेगा 1.8% का, और उसको हम लोग करेंगे M+. और फिर अगेन परचेज है मेगा शेयर्स का 110 इंटू 110, तो 110 इंटू 110 प्लस 1.5% M-. एंड सेल बाद में वापस से किया इन्होंने 150 इंटू 100 माइनस 1.8%, इसको M+. एंड फर्स्ट स्माइल का वापस से सेल है 200 इंटू 150
माइनस 1.8% एम प्लस एंड मेगा सर्विसेज का वापस से सेल है 26 मार्च को 110 इंटू 110 माइनस 1.8% एम प्लस। अब अगर आप एमआरसी का बटन अगर आप प्रेस करोगे ये कैलकुलेशन के दौरान फिर 11,709.95 जितना कुछ आपको आंसर मिलेगा। ये एक्टिविटी जो मैंने अभी की एम प्लस एम माइनस वाली, चाहिए तो इसको वापस से रिवाइंड कर लेना, वीडियो को पीछे ले लेना और वापस से देख लेना। धीरे धीरे यूट्यूब के अंदर फैसिलिटी भी होता है उसको स्लो सुनने की, तो कम स्पीड पे मतलब 0.75 0.5 के स्पीड पे भी सुनने के लिए आपको अवेलेबल रहेगा। तो उसको वापस से सुन लेना और कैलकुलेट आराम से करना। बिकॉज इसके लिए अगर आप वो इन्वेंट्री मेथड करने जाओगे कि कितने की कॉस्ट पड़ी, क्वांटिटी कितना था टोटल, और वैसा करने जाओगे ये एक ही क्वेश्चन तुम्हारा बहुत बड़ा टाइम खींच लेगा। ओके, सो दैट इज वाई एम प्लस एम माइनस जब कैलसी है एंड वी आर अ सीए स्टूडेंट बीइंग अ फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्टूडेंट, मतलब एफएम हम लोग पढ़ते हैं, तो एम प्लस एम माइनस का यूज अपने को बहुत अच्छे से पता होता है। ओके, सो दैट इज वाई ये मैंने बताया। तो 11,709.95 समथिंग कुछ आंसर है, अभी उसके जैसा अप्रोक्सीमेट आंसर ढूंढना पड़ेगा। तो यस, आई एम हैविंग द अप्रोक्सीमेट आंसर ऑफ 11,708। so this is the correct answer. ओके, एंड चेक कर लेते हैं इंस्टीट्यूट का आंसर यही है। यस, यही आंसर। ओके, सो दिस वन इज द परफेक्ट वन, ये परफेक्ट आंसर है। वापस से बोल रहा हूं ये क्वेश्चन जो है चार मार्क करके रखना, बिकॉज ये अलग तरीके का क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया और वो क्वांटिटी की कॉलम और वैसा सब बना के करोगे तो बहुत तकलीफ हो जाएगा भाई, वो मत करने बैठना। ठीक है, चलो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। एज आई सेड आई प्रॉमिस कि 11 to 15 ही करने वाले, तो उस 15 क्वेश्चन तक का अपना टारगेट था। वहां के एमसीक्यू के 10 क्वेश्चन देख लिए, ये 11 to 15 मतलब 5 केस सिनारियो देख लिए, तो 15 तक का क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। ओके, सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। मिस्टर अक्षय बियानी सेलिब्रेटेड हिज 26th बर्थडे सेलिब्रेट किया भाई साहब ने on 15th of May 2020 and arranged a grand party at a Radisson Blue Hotel. On this occasion, he invited his friends, blood relative and a distant relative to attend the party. क्या लैंग्वेज लिखी है मैंने, फ्रेंड को बुलाया, ब्लड रिलेटिव को बुलाया, डिस्टेंट रिलेटिव को बुलाया to attend the party. Ceremony was very grand and the feast was also very spectacular. All the arrangements and decorations were absolutely wonderful. हमें ये सब information से क्या लेना देना। All the arrangements and decorations were absolutely wonderful. At the end of the party, Mr. Akshaya was awarded by a gift and flowers bouquet as infra. Gift received from, अभी पहले गिफ्ट क्या मिला वो छोड़ देना, पहले कौन दे रहा है गिफ्ट उस पर ध्यान देना, बिकॉज 56 to 10 को अपने को ध्यान में रखना पड़ेगा। एक्सेप्शंस भी है हमारे पास कि अगर आपको रिलेटिव से गिफ्ट आता है तो उस गिफ्ट के ऊपर कोई भी टैक्सेबिलिटी नहीं आती है। तो गिफ्ट रिसीव फ्रॉम मदर टैक्सेबिलिटी नहीं आएगा, मदर रिलेटिव के डेफिनेशन। फादर नहीं आएगा रिलेटिव के डेफिनेशन। वाइफ उसको तो रखना ही पड़ेगा रिलेटिव के डेफिनेशन में, तो वो भी। सिस्टर, दिस इज ऑल्सो नॉट इन द डेफिनेशन, सॉरी दिस इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव, सो दिस विल ऑल्सो बी एक्सक्लूडेड। क्या मिल रहा है वो सब छोड़ दो अभी फिलहाल के लिए, पहले कौन कौन दे रहा है उस पर ध्यान देते। कजिन ब्रदर, फादर्स ब्रदर सन, फादर के ब्रदर का सन। ओके, फादर के ब्रदर का सन इज नॉट अ रिलेटिव। ओके, तो ये जो बंदा है इसने जो भी दिया होगा ये टैक्सेबल हो जाएगा। वन गोल्ड चेन ही परचेज इट ऑन द सेम डे फॉर 18,200। गोल्ड चेन है मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी के डेफिनेशन में आएगा। एंड इफ यू रिमेंबर, मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए अपने को ये देखना पड़ता है कि मूवेबल प्रॉपर्टी जो उस बंदे को मिल रही है वो मूवेबल प्रॉपर्टी वैल्यू 50,000 तक है या 50,000 से ज्यादा है। इफ द वैल्यू इज अप टू 50,000 रुपीज then it is fully exempt, but for that purpose we have to check the aggregate fair market value for the movable property. अब एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू, अभी मुझे एक गोल्ड चेन का पता चला है तो 18,200 ही है, वो 50 से कम है तो ऑब्वियसली ये नॉट टैक्सेबल रहेगा। बट आगे अगर कुछ दिखेगा तो मैं इसको बाद में टैक्सेबिलिटी के केस में ले सकता हूं अगर वो 50,000 तक टोटल से ज्यादा बनता है तो। क्लोजेस्ट कजिन मदर्स, सिस्टर्स, सन्स और डॉटर्स। क्लोजेस्ट कजिन ने क्या दिया, I-20 कार दिया। I-20 कार इज नॉट इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। वैल्यू कितनी भी हो क्या लेना देना, इट इज नॉट टैक्सेबल, राइट।
नेक्स्ट, फ्रेंड एंड अदर डिस्टेंस रिलेटिव, कैश दिया इन्होंने। अब आपको पता होगा कैश अगर आपको 50,000 तक मिलता है तो वो फुल्ली एग्जेम्प्ट रहता है, और अगर 50,000 रुपए से ज्यादा रहता है तो वो फुल्ली टैक्सेबल हो जाता है। एग्रीगेट उस केस में भी देखा जाता है। अभी ये 1,51,000 है तो ऑब्वियसली दिस इज व्हाट टैक्सेबल, ओके, बिकॉज एग्रीगेट एक्सीडिंग 50,000। नाउ अभी वो ऊपर वाला चीजें देख लेते हैं। मदर 122 कैरेट गोल्ड चेन शी परचेज ऑन द सेम डे, इज ऑल्सो नॉट टैक्सेबल। परचेज ऑन द सेम डे फॉर 56, not taxable. 4 gold ring, she purchased this ring on 15th of May 2019 for 35,500 each. Fair market value on 15th May 2020 is 37,429. This is also not taxable. Okay. Painting is included in the definition of movable property, but painting is received from sister, so it is not taxable. Okay. Now, Mr. Akash desired to set up a manufacturing unit with his friend in a partnership on 1st of December 2020. For making the investment in the firm, he sold following jewelry which he had received on 26th birthday celebration as a gift. Mother's gifted gold chain for 42,150, father's gifted gold bracelet for 60,180, and cousin brother's gifted gold chain for 20,600. अगर आप देखो ये गोल्ड चेन, गोल्ड ब्रेसलेट एंड गिफ्टेड गोल्ड चेन, ये सब चीज अगर आप देखोगे तो इसके ऊपर आपको कैपिटल गेन प्रोविजन आ जाएगा। सर कैसे? अरे याद करो सेक्शन 47, सेक्शन 47, ट्रांसफर बाय वे ऑफ गिफ्ट विल इनहेरिटेंस, देन ट्रांसफर इज नॉट टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर। ओके, और 56(2)(10 बोलता है कि जब बंदा रिसीव करेगा तो ये चीज टैक्सेबल नहीं होगी। तो ये दोनों चीजें आपकी क्लियर होगी, बराबर। अब ये बंदा इस चीज को बेच रहा है, तो बेच रहा है तो फिर मेरे को सेक्शन 49(1) को बुलाना पड़ेगा, दैट इज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फॉर द असेट विच इज रिसीव्ड इन गिफ्ट। So cost of acquisition will be considered as what? Cost of previous owner. I don't know whether you are understanding this or not. देखो इंस्टीट्यूट क्या जबरदस्त पूछ रहे हैं, मतलब एक क्वेश्चन प्रोविजन 3-4 एक साथ धड़ 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 पीछे से, मतलब लिंकेज ऑफ क्वेश्चन, तुम्हारे लिंकेज ऑफ सेक्शंस आपको पता होने चाहिए। सो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी द कॉस्ट ऑफ प्रीवियस ओनर। तो पहले मदर गिफ्टेड गोल्ड चेन की बात करते हैं। तो मदर ने ये चेन कितने में खरीदा था? 37,822 में। तो 37,822 अगर आप माइनस कर दोगे तो इस बंदे को कैपिटल गेन हो जाएगा 4,328 का। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ऑब्वियसली खरीदा और उसी साल में बेच दिया इन्होंने। फादर्स गोल्ड ब्रेसलेट 60,180 परचेज है 56,075 में। will get 4,105। एंड कजिन ब्रदर का गिफ्टेड गोल्ड चेन जो था, कजिन ब्रदर ने जो गिफ्टेड गोल्ड चेन दिया, ऑब्वियसली इट वाज नॉट टैक्सेबल, बट बाय नॉट टैक्सेबल वो तो 56(2)(10 के प्रोविजन में, बट कॉस्ट तो प्रीवियस ओनर की मानी जाएगी, तो 18,200। तो 20,600 minus 18,200 will be getting 2,400। ओके, नेक्स्ट। तो ये कैपिटल गेन का कैलकुलेशन मैंने इधर करके रख लिया, पता नहीं आगे जाके पूछे ना पूछे, बट केस सिनारियो क्वेश्चन है तो मैंने एज आई सेड अर्लियर ऑल्सो कि आपको पूरा कैलकुलेशन करके रखने का। जो भी आपको चीजें हिंट मिलती जाती है तो वो चीजों को कैलकुलेट करते जाओ, आगे जाके पता चलेगा कि इस पे क्वेश्चन है तो अपना आंसर पहले से रेडी है, आपका टाइम उतना बच जाएगा। His wife gave him 1 lakh rupees as a gift so that he could invest sufficient money in unit. Again, this 1 lakh is not taxable. Why? Received from gift as a received from wife as a gift. Then 1st December 2020, he invested 6 lakh, including the amount invested on sale of above gifts. Amount received from his wife and his friend invested 4 lakh in the firm. उन्होंने 6 लाख रुपया और उसके फ्रेंड ने 4 लाख रुपया इन्वेस्ट किया। On 1st February 2021, his wife again gave him rupees 1 lakh as a gift to invest such money in the firm, and apart from that, he invested 50,000 more from his individual savings. So again, this 1 lakh is not taxable. On this day, his friend also invested 1 lakh in the firm.
Since the firm is manufacturing unit at initial stage, the firm requires sufficient funds. So the Mr. Raksha sold his wife gifted gold rings for 40,250 each on 31st of March 2021, and he deployed the funds as a partner's capital in the form of 1st April 2021. तो उन्होंने 40,250 का क्या किया, वो जो गोल्ड रिंग्स उसको मिले थे ऊपर, उसके वाइफ ने ऊपर दिए थे, उसको उन्होंने बेच दिए। कितने में बेचा? 40,250 में बेचा। अब मैं इधर आपको बताता हूँ इस केस में क्या होगा। अगर मान लो क्वेश्चन पूछता है कि ये वाइफ का कैपिटल गेन क्या होगा क्या नहीं होगा, तो अभी पहले वाइफ वाली चीज पे जाओ। तो वाइफ वाला केस देखो जरा, कितनी गोल्ड रिंग परचेस की थी? 4। He purchased these rings on 15th of May 2019 for 35,500 each. Fair market value on 15th of May 2020 is 37,429. 37,429 का उसका फेयर मार्केट वैल्यू है बेटा, बराबर। तो 37,429 का फेयर मार्केट वैल्यू और 35,500 ईच पे खरीदा, मतलब केनाई से उसको सस्ते भाव में मिला ये गोल्ड रिंग। बट 7716 डिफरेंस अगर आप कैलकुलेट करोगे तो वो 50,000 से कम है, तो इट इज नॉट टैक्सेबल। बट कैलकुलेशन के टाइम पे फेयर मार्केट वैल्यू इधर लिया जाए। क्या बोल रहा हूँ? मूवेबल प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ। मूवेबल प्रॉपर्टी फॉर inadequate consideration. You remember the difference between the fair market value and actual consideration is exceeding rupees 50,000 is fully taxable. उस चीज के बारे में मैंने इधर अभी बात किया। ओके, अभी ये गोल्ड रिंग के बारे में वो आगे जाके अगर क्वेश्चन पूछते तो देखते क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला। ठीक है, अब वो पूछ रहे व्हाट इज द अमाउंट। ओके, बेस्ड ऑन द फैक्ट ऑफ द केस सिनेरियो गिवन अबव, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर अक्षय फॉर द प्रीवियस ईयर 2020? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हमने ऑलरेडी ऊपर कैलकुलेट करके रखा हुआ है। 4328 4105 2400, if you will count 4328 plus 4105 plus 2400, you will be getting 10,833 rupees. तो 10,833 rupees इधर आ जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल। ओके, नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द गिफ्ट अमाउंट नॉट कंसिडर्ड एज इनकम। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the gift amount not considered as income under section 56 to 10 for the previous year 2021? मतलब मैंने ऊपर जिस जिस जगह पे नॉट टैक्सेबल नॉट टैक्सेबल नॉट टैक्सेबल लिखा था ना, हर एक का टोटल अपने को करना पड़ेगा। अब हर एक का टोटल जब हमने करने जाएंगे तो देखो अभी क्या क्या अपने को चीजें मिली। 37,822 ये एक अमाउंट हो गई। ठीक है, 56,075 ये एक अमाउंट हो गई। इसका फेयर मार्केट वैल्यू 37,429 ईच है। 37,429 मल्टीप्लाई बाय 4। सर फेयर मार्केट वैल्यू क्यों? अरे बाबा मूवेबल प्रॉपर्टी है। ओके, मूवेबल प्रॉपर्टी के केस में फेयर मार्केट वैल्यू ही तो देखा जाता है। तो 1,49,716। ओके, तो ये सारे चीजों को हम टोटल करते जाएंगे। 37,822 प्लस 56,075 प्लस 1,49,716 प्लस 45,000 प्लस 18,200 प्लस 4,10,000 मूवेबल प्रॉपर्टी, ये वाला नॉट अ मूवेबल प्रॉपर्टी दिस इज। ओके, देन 1 लाख का गिफ्ट जो आया था ये 1 लाख, देन अगेन ये 1 लाख जो आया था वो भी ऐड करेंगे, सबका ऐड करोगे टोटल मिलेगा आपको 9,16,813। देखो इंस्टीट्यूट क्या क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। मतलब कौन सी चीजें नॉट टैक्सेबल है वो भी बताओ भाई। पता नहीं आपको नॉलेज है नहीं है, तो वो चेक करने के लिए ये इंस्टीट्यूट ऐसा क्वेश्चन आपसे। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द गिफ्ट अमाउंट टैक्सेबल इन द एंड्स ऑफ। इधर बोलता है क्या नॉट टैक्सेबल कौन कौन सा, इधर बोलता है टैक्सेबल कौन सा। टैक्सेबल में सिर्फ एक ही था, कैश विच इज रिसीव्ड 1,51,000, वो चीज यहाँ पर आ जाएगी। What is the gift amount taxable in the hands of Mr. Akshay for previous year 2021? 1,51,000 taxable. Then, is any amount taxable in the hands of Miss Aksha's wife in respect of sale of jewelry by Mr. Akshay? If yes, what shall be the taxable amount in her hands for the previous year 2021? Okay.
प्रीवियस ईयर 2021 के लिए उसको कितना टैक्सेबिलिटी आएगा, वाइफ के हाथ में कोई टैक्सेबिलिटी आएगा क्या, वो पूछ रहे हैं। यस ऑब्वियसली वाइफ के हाथ में टैक्सेबिलिटी आएगा। क्यों आएगा? बिकॉज वो वाइफ ने असेट किसको दिया, गिफ्ट। गिफ्ट दिया था किसको, मिस्टर अक्षया को गिफ्ट दे दिया था, गोल्ड रिंग 4 रिंग दी थी, बराबर। अब वो 4 रिंग की कीमत कितनी थी, 35,500 वॉज द वैल्यू। उन्होंने परचेस इतने में किया था, बेचा कितने में, 40,250 में बेचा था। आप डिफरेंस निकालो, 40,250 माइनस 35,500, यू विल गेट 4750। और ये 4 रिंग के थे, तो मल्टीप्लाई बाय 4 विल बी गेटिंग 19,000 रुपीज। So 19,000 will be the amount which is taxable in the hands of Mr. Akshaya's wife in respect of sale of jewelry, because clubbing provision will be applicable in this scenario. So in this way, this question has been dealt with. Okay, so more or less many things has been covered in today's lecture. Depreciation का concept देखा, sale of asset वाला concept देखा under SLM method, देन पार्टनरशिप फर्म का भी कंसेप्ट देख लिया इधर, देन 56 to 10 वाला प्रोविजन भी देख लिया, 40B का प्रोविजन भी देख लिया, क्लबिंग का प्रोविजन भी इधर आ गया। ओके, देन कैपिटल गेन टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो वो कहीं ना कहीं पे बाईबैक वाला सिनेरियो भी इधर कवर हो गया है। सो मोर और लेस वेरी many questions, many parts are covered in today's lecture. Okay, I believe that you are following this video lectures, and if you are getting a benefit from it, again and again it is my request, if you are getting a benefit from it, then please share with the others also, because as you can see what is the level of the question that institute has asked. Okay, and if such type of question, similar type of question has been asked in your examination, then it will be a very great benefit to you people also, and definitely you will give blessings to me in sitting the classrooms. Okay, while writing the paper, definitely you are going to bless me, सर ने करवाया था, हमने देखा था, तो हो गया हमारे से। ठीक है, तो ऐसे केस सिनारियोज है, ऐसे एमसीक्यूज है। ओके, so with this I end with the day 3 lectures get over here. In the next lecture we will meet with the new MCQs and the new case scenario, that is a continuation part of this. Okay, take care, stay healthy, stay safe, eat healthy, and God bless you. Bye bye.